Hello, my dear students. We are back with our oral pathology as well as oral medicine and radiology campaign. In today's lecture, we'll be discussing very important topics from which 3 to 4 MCQs are asked in all the previous year papers you check. This will be the common MCQs about cyst, about tumor, all these type of questions when you are preparing. You have to be very sure that if a question from cyst is there, your question should not go unattempted, or it should not be wrong. So when you are preparing, you always go in preparing by comparison, comparing all the cysts, comparing all the tumors, comparing all the lesions. What is the difference between them? Duration, timing, lesion characteristics, histology. All these things are very important while preparation. Nowadays, what happens when you try to read, you will first read one of the cysts. Then, when you go for reading another cyst, by this time you will be forgetting about the first cyst. Then, once again, without revision, you will be starting for a third cyst or third lesion. And in spite of going thinking, in spite of your hard work, you will not remember anything. So, I am telling you one thing. Before proceeding to any new topic, you always have a habit of revision. You always have a habit of writing your own notes in which you can remember easily, and then it will be very easy for you to recall as well as recapitulate, and then it will be very easy for you to be perfect in your MCQ preparation. Okay, sometimes exam in your exam very silly questions will be asked. Okay, recurrence of OKC is due to. So you will think that I have read about recurrence, but we don't know the reason. Okay. Another question: what will be the fluid or what will be used to prevent the recurrence of the cyst? So such easy questions, when you are preparing, you will know it, but when you are going in the exam, you will be finding difficulty. So we will be providing you such platform. We will be providing you maximum MCQ solving. By the last 2 months, we are planning to discuss whole day all around 400 to 500 MCQs. Okay, so today we'll be discussing about odontogenic cyst. I think all of the students have joined, and those students who are having doubt, they can directly message us. They can directly contact in the section given below. Type doubts. First, we'll be discussing about odontogenic cyst. Okay, related to tooth during its eruption, after its eruption, or any portion related to the development of tooth is there, and if cyst is formed related to them, it is called odontogenic cyst. Now, first of all, understand the odontogenesis. Okay, when does the tooth is formed? So it begins at 5 to 6 weeks of embryonic life. Ectoderm and epimesenchyme is there. Okay, then in the maxilla-mandible region, 10 bursts of ectodermal proliferation in each arc. Okay, so 10 tooth in the initial stages, there will be 10 bursts. First of all, there will be bud. Okay, there will be initial thickening, then bud will be formed, early cap will be formed, and late cap, and then bell stage. Okay, so here all the features are given: cap stage, bell stage, etc. Okay, so when we'll be preparing our histology, this will be discussed. Then basement membrane, dental papilla becomes odontoblast. Dental follicle will be still at the periphery. Okay, now Hartwig's epithelial root sheath, it will be creating dentin for the roots. Okay, odontoblast will prepare dentin, and Hartwig's epithelial root sheath will be converted into roots. Now, Hartwig's epithelial root sheath layer, it will be converting into epithelial rest of molasses. Now, see, understand all these terms, because in the future slides or in the future portion, all these things will be coming, that this cyst arises from dental lamina.
This cyst arises from epithelial rest of molasses. In this way, you have to recall your cystic development as well as its tooth formation. Now, how does odontogenic cyst form? Okay, first of all, Ox, Ox, તમે કેવી માનો નહીં કોઈ વાત 1000 વાર કીધેલું હોય તમે શું કીધું તું કોઈ દિવસ ન કરાય એક વસ્તુ કોઈ કે નહીં કરવી જ પડે from the reduced enamel epithelium will be having dentigerous cyst as well as eruption cyst. So these are very easy questions. Which cyst arises from reduced enamel epithelium? Which cyst arises from rest of serous? Which cyst arises from rest of molasses? So all these questions, when it will be asked, it should be very clear in your mind that from this portion, this type of cyst arises. Depending upon its location, also you have to clearly go with the timing. Okay, the dentigerous cyst develops only when there is eruption of the cyst. Okay, after its eruption, there are very rare chances. Okay, so from the rest of serous, many cysts will be there. Odontogenic keratocyst, lateral periodontal cyst, gingival cyst of newborn, gingival cyst of adult. From the rest cell of molasses, lateral radicular cyst, residual cyst, buccal bifurcation cyst, all cysts will be there. So it is very easy. You have to just go with the tabular form. From reduced enamel epithelium, from rest of serous, and from rest of molasses. Okay. Now about the tumors, how odontogenic tumors form. Okay, cyst तो आपको समझा दिया. One of the mechanism for cyst formation is abnormal proliferation of growth and uncontrolled proliferation of some cells. So leave some space. Why this space is created in the center? Because nutrition is taken by from these peripheral cells. So in the center, the cells will get loss of or lack of nutrition, and in this way cystic cavity is formed. Okay, now about tumors originating from odontogenic epithelium. Ameloblastoma is there and keratinizing or OKC. ठीक है, odontogenic keratocyst. Now some tumors will be from mesenchyme and some tumor will be from both. Odontoma is a tumor which is derived from both epithelium as well as mesenchyme. So here they have given clearly something very important, and it is very easy for you to recall as well as remember. Here they have given cyst of inflammatory origin. इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन से cyst होता है उसका ये लोगों ने थोड़ा डिफ्रेंशिएशन कर दिया है. Clinical features, it must be associated with a non-vital tooth. So when there is a radicular cyst, for its diagnosis, you have to go for proper radiograph and check the vitality of the tooth. Okay, so it should be non-vital tooth. And in many cases, it is not having any symptom. It will be having pain only when the cyst or lesion has grown to a some extent, so that it displaces bone as well as tissue. And if large cyst is there, there will be swelling. In case of residual cyst, okay, after tooth extraction, you see that some of the cells are there. If you don't go for proper curettage after extraction, this cyst will
happen. Okay. Buccal bifurcation cyst. Sometimes in the buccal side, you will find that near the tooth roots there will be cystic lesion. Now radiographic features. For radicular, you will be seeing that round radiolucency will be there. Loss of lamina dura on the involved tooth surface. Okay. In case of residual cyst, we have single radiolucency, not multilocular. Okay. If it is multilocular, it will be other cyst. OKC will be there, other lesions will be there. So it is unilocular, and it is found where tooth was extracted, missing tooth space. In case of buccal bifurcation cyst, unilocular radiolucency, it involves the buccal bifurcation and roots associated with the tooth. Occlusal radiographs are most useful. Buccal cyst has some tendency of lingual root displacement. Okay. Now pathophysiology. What is the reason behind radicular cyst? So as the name suggests, epithelial cell rest of mala cells. Okay, rest cells. Some type of inflammation stimulate these cells to proliferate, and proliferation will be such that uncontrolled growth will be there. In the center, lack of nutrition, cavity will be there. Okay. Sometimes it turns into a lateral radicular cyst if the inflammation extends to the lateral accessory foramen. In case of residual, there are two theories. First of all, you see that after removal of tooth, the clearly curettage is not there. Inflammatory tissue is not completely removed. Okay. And second is cyst was not there. Okay. Tooth was removed, but sometimes some epithelial rest cells are stimulated after tooth removal. Okay. Both reasons can be there for residual cyst. In case of buccal cyst, it is a developmental defect. Okay. Enamel is in the root area and PDL fibers cannot attach. Okay. Due to this lack, right? Due to this gap, this local area traps food and debris to cause inflammation. Okay. And this inflammation causes or stimulates rest cells. So as the name suggests here, ये सारी की सारी इन्फ्लेमेटरी सिस्ट है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होगा. तो इन्फ्लेमेशन से रेडिकुलर सिस्ट होती है, रेसिडुअल सिस्ट भी होती है और बक्कल बाइफर्केशन सिस्ट भी होता है. अब रेसिडुअल सिस्ट का एक और रीजन है, इन्फ्लेमेशन से नहीं, तो अगर आपने क्यूरेटाइज नहीं किया तो कोई सिस्टिक सेल्स रह जाएंगे तो भी ये हो सकता है. ठीक है. अदर कंसिडरेशंस. ठीक है. In some cases, we see that it seems like radicular cyst, but the tooth is vital. So the first condition for radicular cyst is tooth should be non-vital. In the case where tooth is vital, always go for odontogenic keratocyst. Okay, it is differential diagnosis. So vitality test is important in case of radicular cyst. Now, important thing, lamina dura. If it is absent, then it is suggestive of radicular cyst. If it is there, then you have to eliminate the case of radicular cyst. So every round radiolucency below the apex of root is not a radicular cyst. 4 to 5 specific findings will be there for radicular cyst. First thing is non-vital, tooth should be there,
Second is round radiolucency. Third thing is loss of lamina dura. Okay, all these things are important while taking your history, and this is suggestive of proper cyst diagnosis. In case of buccal cyst, it is on the mandibular first molars. Okay, on the both sides we have this cyst, and in cases of children 5 to 13 years old, we find this. Okay, now treatment. Then radicular cyst, you have to go for RCT because since the tooth is non-vital, pulp you have to remove necrosed pulp and you have to go for root canal. Sometimes you see that at the apex it is not resolving, so you have to go for apicectomy. You have to clear the tissues at the apex. Okay. In case of buccal cyst, you have to go for enucleation. Okay, complete removal. Till now, if you are having doubt, please let me know. सिस्ट का ट्रीटमेंट हमने एक समझाया था पहले लेक्चर में, अभी भी समझा देते हैं। छोटी चीज सिस्ट होती है तो आपको ई न्यूक्लिएशन कर देना है। इन केस वेयर द सिस्ट इज लार्ज एंड व्हेन इट affects its removal affects any hard or soft tissue, if there is something prognosis poor after its removal, then you have to go for marsupialization. So what is marsupialization? सिस्ट बड़ी होती है, उसको ड्रेन कर देना है पंचर करके, उसके सारे कंटेंट्स चले जाएंगे तो छोटी हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी और इतनी छोटी हो जाएगी कि उसको निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी पेशेंट को। ठीक है, ऐसे सोचिए कि कोई सिस्ट एंगल ऑफ मैंडिबल है पर है और बड़ी सिस्ट है, तो आप निकालोगे तो मैंडिबल के दो टुकड़े हो जाएंगे। एंगल पर आप निकालोगे तो मैंडिबल फ्रैक्चर के चांस होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिस्ट को पहले मार्सुपिलाइजेशन करना है और फिर उसको इन्यूक्लिएट करना है। ठीक है, तो सिस्ट की ट्रीटमेंट आपको इंटरव्यू में ये लोग पूछ सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं, कौन कौन सी सिस्ट होती है, इन्फ्लेमेटरी सिस्ट कौन सी है, डेवलपमेंटल सिस्ट कौन सी है, ये सब आपको परफेक्टली टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ठीक है, अब सिस्ट जो डेवलपमेंटल होती है, इन्फ्लेमेटरी हमने पढ़ ली, अब ये डेवलपमेंटल वाली है। जब टूथ डेवलपमेंटल होता है या डेवलपमेंट होने के बाद कहीं ना कहीं उसका टिश्यू रेमिनेंट रह जाता है, उसमें से जो बनती है वो, तो डेंटिजरस सिस्ट आती है। ठीक है, उसका क्लिनिकल फीचर, तो इट इज एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, छोटी जो होती है ना वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, लार्ज होती है ना वो बोन को भी एक्सपांड करता है, फेशियल एसिमेट्री भी करता है। ठीक है, और इन्फेक्टेड होती है वो पेनफुल होती है। कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है, वो क्या है, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन वाले सेल्स होंगे, कोस्ट सेल्स होंगे। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई कोस्ट सेल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक सिस्ट। फिर इरप्शन सिस्ट, तो जब इरप्शन होता है ना तब एक फॉलिकल ब्लूइश कलर सिस्ट जैसा हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो केराटिनाइज्ड ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है, ये इरेप्टेड टूथ के साथ लेना देना है और उसकी लाइनिंग केराटिन वाली हाई है, इसलिए उसका नाम ऑर्थो केराटिनाइज्ड है। ठीक है, लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट, पेरिडोन्शियम में जहाँ पे टूथ के लेटरल साइड है वहां पे ये होता है। ठीक है, ये आइडियली एसिम्प्टोमेटिक होती है जब तक वो टूथ एक दूसरे को पुश नहीं करते हैं और ड्रिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये रूट्स के साइड में रेडिकुलेशन से दिखेगी, रेडिकुलर सिस्ट होगी तो नीचे दिखेगा, ये तो साइड में आपको रेडिकुलेशन सी दिख रही है। ठीक है, जिंजरल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न, इसके भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है, बॉन्स नोड्यूल्स होते हैं, एब्स्टेंट पल्स होते हैं, ये सिस्ट भी आती है जब न्यूबॉर्न होते हैं, एडल्ट होते हैं ना तब। ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट,
कभी कभार जो ग्लैंड जैसी टिश्यू होती है ना, एडिनोइड वाली, वो टिश्यू का सिस्ट में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है। अब सबके रेडियोग्राफिक फीचर्स। डेंटिजरस होता है तो उसके क्राउन के साथ अटैच्ड होगा। ये वाला सर्कमफ्रेंशियल है, ये वाला लेटरल है, और एक पेरिफेरल भी आएगा। तीन टाइप की रेडियोसेंसी उसमें आपको दिखेगी। ठीक है। तो वो यूनिलोक्यूलर रेडियोसेंसी है। ठीक है, एक ही लोक्यूल्स में होगी। यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो। ठीक है। ओकेसी में भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यूनिलोकुलर होगा तो डेंटिजरस सिस्ट। ठीक है। और इसका एक क्लियर कट टर्मिनोलॉजी है। कोई बुक्स बोल रहा है 5 mm, कोई बुक्स बोल रहा है 6 mm। इससे कम होगा तो वो फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं, इससे ज्यादा होता है तो डेंटिजरस सिस्ट बोलते हैं। ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इट इज मोर लाइकली मोर देन ए नॉर्मल फॉलिकल। बॉर्डर्स वेल डिफाइंड होगी, कॉर्टिकेटेड। ठीक है। रूट्स भी रिजॉर्व कर सकते हैं आजू बाजू के, और टूथ भी डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है। इसकी बॉर्डर देखो, क्लियर कट, बॉन्ड के अंदर कॉर्टिकेटेड है। कोस्ट सॉल्स में कभी कभार यूनिलोक्युलर होता है, मल्टीलोक्युलर होता है। ठीक है। और जो भी सिस्ट होती है ना, वो आजू बाजू के रूट्स और टूथ को डिस्प्लेस, रूट्स को रिजॉर्व करता है। ये सब कॉमन है। ठीक है। तो ये कोई पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं है, ये तो सब में लिख ही देना है। फिर ओडोटोजेनिक सिस्ट। ठीक है। उसमें क्या आएगा, टूथ की तरह ही है, डेंटिजरस की तरह ही है। ठीक है। यूनिलोक्युलर भी होता है, कभी कभार मल्टीलोक्युलर भी होता है। इसकी सैटेलाइट सिस्ट, मतलब छोटी छोटी उसकी बहुत सिस्ट होती है। किसकी? ओकेसी की। ठीक है। ओडोटोजेनिक केराटिसिस्ट की सैटेलाइट और डॉटर सिस्ट होती है, उसका फैमिली होता है पूरा, इसलिए उसको निकालने में दिक्कत होता है। रिकरेंस का उसका यही रीजन है कि उसकी डॉटर या सैटेलाइट सिस्ट होती है। रिकरेंस ना हो इसलिए हम यूज करते हैं कैरनोइ फ्लूइड, CARNOY फ्लूइड। ठीक है। फिर आता है लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट। तो रेडियोसेंसी आपको दिखेगी, मल्टीलोक्युलर भी हो सकता है। ठीक है। और अगर मल्टीलोक्युलर होता है तो उसको बोलेंगे बोटिरॉइड ओडोटोजेनिक सिस्ट। फिर आएगा जिंजाइवल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है। वो तो पेनलेस स्वेलिंग होता है बकल या मुक्यूजा में। ठीक है। और लास्ट में आता है ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट। तो एक दो ही फीचर सबके अलग होंगे, बाकी तो ये लोग यही बता रहे हैं कि आइडियली यूनिलोक्युलर होती है, कभी कभार मल्टीलोक्युलर होता है। ठीक है। तो ऐसे आपको डिफ्रेंशिएशन करके रेडियोग्राफिक फीचर याद रखना होगा। पैथोफिजियोलॉजी। तो ये कहाँ से डेवलप होता है? रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम से। ठीक है। ये इनेमल सेल से डेवलप होता है। ठीक है। ये डेंटिजरस सिस्ट का सॉफ्ट टिश्यू वर्जन है, तो ये रेड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम से होगा। ओकेसी होगा तो सेरेस से होगा, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा। ठीक है। ये रूट्स के साइड में होगा, और ये प्लूरिपोटेंट सेल से डेवलप होगा। और डेंटिजरस सिस्ट की खास बात ये है कि वो टूथ का जो सीमेंटो एनिमल जंक्शन होगा ना, उसके साथ अटैच्ड होगा। ठीक है। यहाँ पे सीमेंटो एनिमल जंक्शन होता है, तो इसके साथ वो अटैच होगा। ठीक है। अदर कंसिडरेशंस, तो उसके बारे में कुछ क्या क्या अलग है। ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट, 10 to 30 years में आता है, मेल्स ग्रेटर देन फीमेल। ठीक है। तो ये जो अदर कंसिडरेशन है वो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। रिकरेंस के बारे में भी हमने आपको समझाया, कैर्नोइज फ्लूइड आएगा ओकेसी में। ठीक है। बाकी सब में कॉमन ही होगा कि कोई चिल्ड्रन में होता है, कोई बड़ों में होता है, एज में होता है। ठीक है। ट्रीटमेंट, तो इन शॉर्ट हम आपको समझा देते हैं, इन्यूक्लिएशन करना होता है, छोटी सिस्ट होती है तो।
अगर दिक्कत होता है तो आपको मार्सुपिलाइजेशन करना है, उसको सिस्ट को ड्रेन कर देना है। ठीक है, अब दोनों का कंबाइंड भी एक ट्रीटमेंट आता है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको पार्श ऑपरेशन बोलते हैं शायद हो, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो दोनों भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इफ सिस्ट इज लार्ज, डिकम्प्रेशन एंड मार्सुपिलाइजेशन। ठीक है, ये वाली टेक्निक। अब ऑडोटोजेनिक सिस्ट और ट्यूमर, उसके बारे में थोड़ा आउटलुक कर देते हैं। ओकेसी के बारे में 1992 में ऑडोटोजेनिक केराटोसिस्ट के बारे में बताया था नाम। फिर 2005 में केराटोसिस्ट ऑडोटोजेनिक ट्यूमर आ गया। 2017 में वापस वही का वही नाम आ गया, क्योंकि वो ज्यादातर सिस्ट है, ट्यूमर नहीं है। ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो रेस्ट ऑफ मालासेस से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, एज उसकी 10 to 40 ईयर्स और एरिया तो रेमस और पोस्टीरियर मैंडिबल की बॉडी। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वो ज्यादा फास्ट ग्रो करता है एंटेरो पोस्टीरियरली, कैंसरस बोन में ग्रो करता है, और कभी कभार वो गॉर्लिन सिंड्रोम आता है ना, उसके साथ वो एसोसिएटेड है। ठीक है, अब आता है रेडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन। स्मॉल राउंड भी हो सकता है, यूनिलोक्युलर होता है और मार्जिन्स भी होता है। ठीक है, लेकिन उसकी अलग अलग साइट है। मैक्सिला में होता है तो स्मॉल राउंड होता है, मैंडिबल में होता है तो यूनिलोक्युलर होता है, और मैंडिबल में ही है तो मल्टीलोक्युलर। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फ्रीक्वेंसी और लोकेशन, उसका 3 क्राइटेरिया है। हिस्टोलॉजिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो पिकेट फेंस आएगा। ठीक है, आप देखोगे ना यहाँ पे टॉम स्टोन और कोई किला होगा ना, फोर्ट, उसकी वॉल होगी ना, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, रेटेपेक्स नहीं होंगे। ठीक है, एपिथेलियम होगी, पैराकेराटिन होगा, और एपिथेलियल लाइनिंग की सेपरेशन हो जाएगी कनेक्टिव टिश्यू से, एपिथेलियल बडिंग हो जाएगा, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी हो जाएगा। ठीक है, और माइक्रोस्कोप में ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अदर कंसिडरेशंस, ठीक है, उसकी अलग, उससे क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो रिकरेंस ज्यादा होता है सैटेलाइट सिस्ट और एपिथेलियल सिस्ट के कारण। ठीक है, क्योंकि उसकी हम थिन एपिथेलियल लाइनिंग भी है, और एक रीजन। ठीक है, और बेजल सेल्स का प्रोलिफरेशन है। तो 4 रीजन आ गए, एक तो सैटेलाइट सिस्ट, डॉटर सिस्ट, एपिथेलियल रेस्ट, और कभी कभार आप जब सिस्ट निकालोगे तो उसकी लाइनिंग इतनी थिन होगी तो वो इनकम्प्लीट रिमूवल होगा। ठीक है, उसके कारण ये रिकरेंस होता है। ट्रीटमेंट, तो इन्यूक्लिएशन ही करना है, मार्सुपिलाइजेशन भी कर सकते हो, और छोटी हो तो इन्यूक्लिएशन, बड़ी हो तो मार्सुपिलाइजेशन, और पहले मार्सुपिलाइजेशन करके इन्यूक्लिएशन भी कर सकते हो। ठीक है, कैर्ने सॉल्यूशन से आपको रिकरेंस अटकाना है। ठीक है, ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है, ये ओकेसीएसी है जो लेस रिकरेंस पर होता है, और वो सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड एपिथेलियम दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, हिस्टोलॉजी में पैराकेरेटिन था, लेकिन कभी कभार ऑर्थोकेरेटिन वाले भी होगी। अब इसके साथ कौन सा सिंड्रोम जुड़ा हुआ है ओकेसी के साथ, गॉर्लिन सिंड्रोम। ठीक है, उसमें क्या होता है, पीटीसीएच जीन जो होता है, ठीक है, पीटीसीएच जीन, उसमें दिक्कत आ जाती है, तो ये एसोसिएटेड है ओकेसी के साथ। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सिंड्रोम के साथ
कौन कौन से लीजन्स एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर आता है हाई पेनिट्रेंस बट वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ठीक है। फिर आएगा सिम्टम्स, उसमें मल्टीपल ओकेसिस देखने को मिलेगी। तो जब ओकेसी आता है तब आपको गोर्लिन सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बेसल सेल कार्सिनोमास भी दिखेंगे, रिब और वर्टिब्रल एब्नॉर्मेलिटीज दिखेगी, क्रेनियल और फेशियल एब्नॉर्मेलिटीज, कैल्शियम और फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ट्यूमर्स, सिस्ट के बारे में समझा दिया। अब आते हैं ट्यूमर्स, तो एमिलोब्लास्टोमा, यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा और ओडोंटोमा, उसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो ज्यादातर मैंडिबुलर मोलर रीजन में होता है और रेमस में होता है। वो ओडोंटोजेनिक ट्यूमर की तरह ही वो दिखता है, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। स्लो ग्रोइंग होता है, लोकली इन्वेसिव होता है और ज्यादातर वो बेनाइन है, मेटास्टेसिस नहीं होता। फिर एमिलोब्लास्टोमा यूनिसिस्टिक, ठीक है, वो सिस्ट जैसा लीजन बनाएगा एमिलोब्लास्टोमा के साथ, ठीक है। और एक्स्ट्रा ओसियस या पेरिफेरल, तो टूथ के नीचे नहीं, बोन के नीचे नहीं, ऊपर ही वो एमिलोब्लास्टोमा टाइप का रेस्ट ऑफ डेंटल लेमिना से बनेगा। और ओडोंटोमा, तो ओडोंटोमा जो है ना, वो टूथ का जो डेवलपमेंट होता है, तो टूथ का ऐसे सोचो कि कोई कमांड उसको अलग मिल जाए, तो टूथ जो बनता है ना, उससे कमांड उसको अलग मिलेगा, तो टूथ नहीं बनेगा, टूथ के जैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो टूथ के स्ट्रक्चर्स बनेंगे और अगर उसके जैसे दिखते हैं तो बोलेंगे हम ओडोंटोमा टू वाले हैं, और उसको नाम दिया है कंपाउंड, ठीक है। और टूथ जैसा दिखता नहीं, ऐसे ही कुछ ना कुछ बना दिया है लेकिन कैल्सिफाइड मास है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओडोंटोमा के बारे में बताएं, पल्प स्टोन के बारे में बताएं। तो पल्प स्टोन का तो बहुत तीन टाइप का क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये सब उसके कैसे क्लासिफिकेशन है। अब पैथोफिजियोलॉजी, उसके टाइप्स, फॉलिकुलर, प्लेक्सिफॉर्म, एक्एंथोमेटस, ग्रैन्युलर सैंड, डेस्मोप्लास्टिक, ठीक है। फॉलिकुलर एंड प्लेक्सिफॉर्म आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है, एमिलोब्लास्टोमा का। ये सिस्टिक टाइप है, ये सिस्ट जैसा ही लगेगा लेकिन आपके एमिलोब्लास्टोमा की हिस्टोलॉजी दिखेगी, ठीक है। इसका रीजन है ये रेड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम से बनता है और ये बनता है एपिथेलियम रेस्ट सेल्स, ठीक है। और ये बनता है डेंटल लमाइना से, इसका ओरिजिन, ठीक है। ये तो हम बोल सकते हैं कि ये डेवलपमेंटल एनामोली है, जब टूथ बनता है तब कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स को गलत मैसेज मिल जाता है और टूथ बनाने के बदले वो ओडोंटोमा बन जाता है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये हनीकॉम जैसा अपीयरेंस हो जाएगा, पेनलेस यूनिसिस्टिक स्वेलिंग जैसा वहां पे दिखेगा और एक्सपांशन भी होगा। कभी कभार तो वो एसिम्टोमेटिक होता है, पेनलेस होता है। जब वो फेशियल एसिमेट्री आ जाती है, बोन का एक्सपांशन हो जाता है, तब जाके पेशेंट को दिक्कत होती है। तो सोप बबल अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये ट्यूमर ऐसा है कि वो जो इन्वेड करता है ना, वो क्या करेगा, वो आजू बाजू टूथ को डिस्प्लेस करेगा, आजू बाजू बोन को एक्सपांड करेगा, ठीक है, रिजॉर्व करेगा। अब इसके थ्री टाइप्स है, ठीक है। सिस्ट वाला एम्ब्लोब्लास्टोमा, इंट्राल्यूमिनल, न्यूरल, ठीक है, और यूनिलोकुलर, अलग अलग टाइप्स है।
और वो डेंटिगरस सिस्ट का एक रिलेशन रखता है कि पहले डेंटिगरस सिस्ट होगी और वो कन्वर्ट हो गया है एम्ब्लोब्लास्टोमा में, ठीक है। आइडियली डेंटिगरस cyst, if it is not treated in the initial stages, it is a turns into sequel of ameloblastoma. Then peripheral ameloblastoma, तो सेल रेस्ट ऑफ डेंटल लमेना, वहां से वो ओरिजिनेट होता है, पेनलेस होता है और कभी कभार अल्सरेटेड भी होता है, लेकिन वो अच्छी बात यह है कि उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो जिंजाइवल के ऊपर एक ग्रोथ जैसा दिखेगा। और ओडोंटोमा के बारे में तो बताया, टूथ जैसा दिखेगा, ठीक है, तो वो कंपाउंड है, ये दिखता नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स है। ये थोड़ा दिखेगा टूथ जैसा तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। फिर हिस्टो प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो पेलिसेडिंग कॉलमनर सेल्स देखने को मिलेंगे अराउंड एपिथेलियल नेस्ट, ठीक है। फिर डिस्प्लेजिया के जितने भी फीचर्स थे, रिवर्स पोलैरिटी, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर हाइपोक्राइमोटिज्म, वो सब आ जाएंगे और सेल्स लूजली अरेंज्ड होंगे। एक बात समझिए, ट्यूमर होता है या सिस्ट होता है तो उसमें सेल्स थोड़े लूजली अरेंज्ड होंगे ताकि वो एक्सपांड हो सके, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, डेस्मोप्लास्टिक एम्ब्लोब्लास्टोमा। वो एक ऐसा एम्ब्लोब्लास्टोमा है जो दोनों रेडियो ओपेक भी है और रेडियोलुसेंट, और कभी कभार आपको फाइब्रोओसियस लीजन जैसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई सिस्ट वाला एम्ब्लोब्लास्टोमा कौन सा है, तो सिस्टिक एम्ब्लोब्लास्टोमा जो डेंटिगरस सिस्ट के सीक्वल में कन्वर्ट होता है। फिर फाइब्रोब्लास्टिक वाला कौन सा है, तो डेस्मोप्लास्टिक, ठीक है। फिर पहला वाला कौन सा है, तो हनीकॉम्ब वाला, सोप बबल वाला अपीयरेंस, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग कितने भी एम्ब्लोब्लास्टोमा के टाइप्स है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट, उसमें क्या आएगी, रिजेक्शन आएगा, बोन को निकाल देना है, और खराब बोन जो ट्यूमर है उसके साथ थोड़ा नॉर्मल बोन भी निकालना है, ठीक है। 1 to 1.5 सेंटीमीटर ऑफ हेल्दी बोन वो भी निकालना है, ठीक है। और कभी कभार ये है कि अगर मैक्सिला में एम्ब्लोब्लास्टोमा होता है तो आपको कंप्लीटली बोन को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं रखना है। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है कि जितना हो सके उतना कम निकाले, नॉर्मल बोन को रखे, ठीक है। फिर आता है सिस्टिक वाला, तो इन्यूक्लिएशन और क्यूरेटाज, ठीक है। फिर ये लोकल सर्जिकल एक्सिजन भी कर सकते हो, और ये ओडोंटोमा में कोई दिक्कत है नहीं। अगर वो फेशियल एसिमेट्री क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में दिक्कत करता है तो आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, निकाल देना है, एक्सीजन, एक्सट्रैक्शन नहीं, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब आता है फाइब्रोओसियस लीजन ऑफ द जॉ, ठीक है। तो इसमें आएगा फाइब्रस डिस्प्लेजिया और पेजेट्स डिजीज और चेरेबिज्म, ठीक है। तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया तीन होते हैं, ऑस्टियोलाइटिक होते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक और सीमेंटोब्लास्टिक और मैच्योर, ठीक है। उस हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग डिसऑर्डर्स को। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया है फाइब्रस डिस्प्लेजिया और ऑसिफाइंग फाइब्रोमा के बीच। तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया जो होता है वो मैक्सिला में ज्यादा होता है, मैंडिबल में कम होता है। ऑसिफाइंग फाइब्रोमा उससे अलग है, मैंडिबल में ज्यादा होता है। फाइब्रस डिस्प्लेजिया की कोई लाइनिंग प्रॉपर नहीं, यहाँ पे वेल सर्कमस्क्राइब्ड है। ये ज्यादा बॉन को इन्वॉल्व करता है, ये एक ही बॉन को करता है। इसकी वास्कुलर मैट्रिक्स है, फाइब्रस डिस्प्लेजिया में वास्कुलर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे सेलुलर फाइब्रस मैट्रिक्स है। यहाँ पे बॉन का जो ट्रेबिकुल है ना वो परफेक्ट है, वोवन है, और यहाँ पे बॉन के आइलैंड्स है। प्यूबर्टी में ये स्टेबलाइज हो जाता है, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, चेरेबिज्म, वो सब। और ये डिसऑसिफाइंग फाइब्रोमा है ना, वो कोई इंफ्लेमेटरी या स्टिमुलेटरी प्रोसेस है, वो हार्मोन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, ठंडू। और ट्रीटमेंट क्या है कि फाइब्रस डिस्प्लेजिया की,
आप रिकंटूरिंग कर सकते हो। ओसिफाइंग फाइब्रोमा में आपको रिकंटूरिंग नहीं करना है, निकाल देना है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस को आपको एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। अब आता है पेजेट्स डिसीज ऑफ बोन। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था पेजेट्स डिसीज ऑफ बोन में पेशेंट का जो सिर होता है वो एनलार्ज हो जाता है, उसकी टोपी फिट नहीं आती है, तो एनलार्जमेंट ऑफ हेड एंड यू हैव टू रिप्लेस हेड रिपीटेडली। Same way, you have to replace the dentures because mandible and maxilla, the jaw size is also increasing. So head dimension is increasing as well as jaw dimensions are increasing. So you have to replace. So in short, you will be understanding that in the head and neck, all the bones are increasing in size. ये क्यों होता है? तो रिजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन डिपोजिशन का जो इक्वल रेशियो होना चाहिए वो नहीं होता है, और बार बार बॉन्ड डिस्ट्रॉय होता है और नया बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे करके करके बॉन्ड के लेयर्स के ऊपर लेयर्स बन जाते हैं और बॉन्ड की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, तो वो ज्यादातर इट इज सीन इन द एल्डर्स अबव 40 इयर्स। ठीक है, जो इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, तो जैसे मैंने बताया कि पेशेंट का स्कल और जोस दोनों एनलार्ज होते हैं, तो डेंचर्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, टोपी भी बदलनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, और हिस्टोलॉजी आप देखोगे लैब वैल्यूज, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेस एलिवेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस ज्यादा है, इसका मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा है। रेडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो कॉटन वूल जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, स्पेयर स्पेसेस आपको दिखेगी बोन में। लेमिना ड्यूरा भी लॉस हो जाएगा, बोन का एनलार्जमेंट हो जाएगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो जाएगा। हिस्टोलॉजिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो फाइब्रस टिश्यू भी होगी और बोन के अंदर फाइब्रस टिश्यू आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, और मोज़ेक पैटर्न में बोन का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्यों होता है, बॉन्ड रिजॉर्प्शन होने के बाद नया बॉन्ड बन जाता है बार बार यहाँ पे, फिर ये रिजॉर्प्शन होता है, फिर नया बॉन्ड बनता है, इसलिए आपको मोज़ेक पैटर्न दिखेगी। और बॉन्ड डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन का ये रिवर्सल लाइंस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट, तो एसओएस आपको पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन किलर्स देना है, बॉन्ड का टर्नओवर हो जाए, बॉन्ड ठीक से बने और डिपोजिट हो जाए और रिजॉर्व भी हो जाए, इसलिए बाइफॉस्फोनेट्स और कैल्सिट्राइल देना है। कभी कभार अगर खराब है तो आप एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट में ऑस्टियोसार्कोमा भी बन जाता है पेजेट्स डिसीज के बाद। ठीक है, अब आता है फाइब्रस डिस्प्लेजिया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब हम फाइब्रोओस्टियस लीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये पीडीएफ में थोड़ा छोटे छोटे बहुत हैंडराइटिंग कर दी है। सही है, अब चलो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हम आपको ये नोट्स देने वाले हैं। ठीक है, फाइब्रस डिस्प्लेसिया, उसका बैकग्राउंड,
तो मैक्सिला में ज्यादा होता है, मैंडिबल में कम होता है। ओसिफाइंग फाइब्रोमा देखा आपने, वो मैंडिबल में ज्यादा होता है, मैक्सिला में कम होता है। और ये जीन का प्रॉब्लम है, ठीक है, पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन में दिक्कत है। और फाइब्रस डिस्प्लेसिया और चेरेबिज्म दोनों प्यूबर्टी से पहले हो जाते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं बिफोर 20 ईयर्स, ठीक है। पेजेट्स डिसीज होता है वो एडलर में देखने को मिलता है। फाइब्रस डिस्प्लेसिया के 3 टाइप्स है, मतलब मोनोस्टोटिक और पॉलीओस्टोटिक, और क्रेनियोफेशियल भी दिखता है। कोई बुक में 4 टाइप्स दिया है, मोनोस्टोटिक, पॉलीओस्टोटिक, क्रेनियोफेशियल और चेरेबिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप आप समझिए, मोनोस्टोटिक और पॉलीओस्टोटिक, ठीक है। तो मोनोस्टोटिक में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा इन्वॉल्व और क्रेनियोफेशियल के साथ एसोसिएटेड होगा। पॉलीओस्टोटिक में क्या होगा, 2 से ज्यादा बॉन्ड इन्वॉल्व है और 2 सिंड्रोम उसमें एसोसिएटेड है, एक जेफ और एक एल्ब्राइट, ठीक है। जेफ में क्या आएगा, बॉन्ड और एंडोक्राइन, 2 चीज ही आएगी, ठीक है, पिगमेंटेशन नहीं आएगा। और मैक्यून ऑलब्राइट में क्या आएगा, बॉन्ड भी इन्वॉल्व होगा और पिगमेंटेशन भी होगी और एंडोक्राइन भी होगा। थोड़ा गलत हो गया, जेफ में बॉन्ड और पिगमेंटेशन, और ऑलब्राइट में बॉन्ड, पिगमेंटेशन और एंडोक्राइन, ठीक है। तो एंडोक्राइन एक एक्स्ट्रा होगा मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम में। आपको अगर स्क्रीन पर सही दिख रहा है तो मुझे बताइए, नहीं दिख रहा है तो हम ये आपको पीडीएफ भेजने वाले हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ये आपको बेहतरीन नोट्स बना के दिया है हमने, तो आपको अच्छी तरह से ये डिफ्रेंशिएशन आप कर पाओगे, ठीक है। तो फाइब्रस डिस्प्लेसिया के बारे में अभी हम इसमें पढ़ेंगे, बाकी सब आपको अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ लेना है। फिर आता है रेडियोग्राफिक फीचर्स, ठीक है। तो रेडिएशन भी होगा और रेडियो ओपेक एरियाज भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज ऑफ कैल्सिफिकेशन आपको दिखेगा, यूनिलोक्युलर है कि मल्टीलोक्युलर, उसकी कोई मार्जिन्स क्लियर नहीं है, और वो टूथ एपेक्स पर कभी वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। टूथ के साइड में देखने को मिलेगा। फिर हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी क्या आएगी, तो चाइनीज लेटर पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंचू वॉक कैरेक्टर्स, उसको चाइनीज लेटर पैटर्न बोलते हैं फाइब्रस डिस्प्लेसिया में, ठीक है। सीमेंटम लाइक मटेरियल भी देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट, तो प्यूबिटी के तक आपको वेट करना होगा, बॉन्ड जब कंप्लीटली डेवलप होना पूरा कर दे, डेवलपमेंट हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, तब जाके आप उसको रिकंटूरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फाइब्रस डिस्प्लेसिया में थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आया कैंडिडल इन्फेक्शंस, ठीक है, हमारी बॉडी में जो कैंडिडियासिस होता है उसके बारे में ये समझाया है, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या आएगी, पहले तो ये समझा देते हैं, उसमें कर्ड लाइक अपीयरेंस आता है और थ्रश बोलते हैं उसको, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या आएगी, निस्टेटिन के रिंस आएंगे, एंटी फंगल्स लोजेंस भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर ये लोजेंस या रिंस करने के बाद आपको आधे कलाक खाना पीना नहीं है। दूसरे एंटीफंगल्स कौन से हैं, क्लोट्राइमेजोल, फ्लूकोनाइजोल, केटाकोनाजोल। कैंडिड का पेंट भी आता है, 1% क्लोट्राइमेजोल, ठीक है। अब ये बाकी सब आपको अपनी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है, कैसे ट्रिगर पॉइंट्स होता है, कौन कौन से मसल होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है।
आपको अगर कोई डाउट्स हो तो हमको बताइए, हम सॉल्व करवा देते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाके आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एप्लीकेशन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे और डेंटल नोट्स मिल जाएगी। 6 महीने में आपको हम जीपीएससी का कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। 2-3 बार रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट मंथ हम कंप्लीटली 500-600 एमसीक्यू का एक टारगेट रखकर आपको हर एक सब्जेक्ट का वो एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, तब जाके आपका क्लियरेंस हो जाएगा। तो गाइज, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो हमको बताइए, अदरवाइज इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम एंड गुड नाइट।